ان دنوں میں آپ کو معلوم ہے کہ میں بیکم کرائسٹ لائک کے اوپر کلام سنا رہا ہوں، بیٹے کی ہم شکل کے اوپر، بیٹے کی مانند بننے کے اوپر میں آپ کے ساتھ کلام شیئر کر رہا ہوں، اور یہ بے حد ضروری ہے۔ اور ہمارا جو فوکس ٹارگٹ ایک ایماندار کا وہ بیٹے کے ہم شکل ہونے پر ہے، اور جو بیٹے کا ہم شکل نہیں ہوگا وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ خداوند نے ایک سٹینڈرڈ بنایا ہے۔ سٹینڈرڈ کیا ہے؟ یسوع مسیح۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح کو قبول کر لیا اور ہم نجات یافتہ یا ایماندار کہلاتے ہیں، یہ دراصل ایک وہ شروعات ہے جو آپ نے کی ہے، لیکن اس کا انجام یہ ہے کہ ہم اس کے بیٹے کی مانند ہوں گے۔ آمین۔ دیکھیے میرے ساتھ جو ہماری سیریز کا جو مین ورس ہے، رومیو کا خط، اس کا 8واں باب، اس کی 29 آیت ہے۔ کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا، تاکہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے۔ اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ آمین۔ تو یوحنا کے خط کے اندر لکھا ہے کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم اس کی مانند ہوں گے۔ چنانچہ جب یسوع مسیح ظاہر ہوگا تو ہم کس کی مانند ہوں گے؟ یسوع مسیح کی مانند ہوں گے۔ اور یہ رویل ہوگا اس دن، لیکن اس سے پہلے پولس رسول نے دوسرے کرنتھیوں کے میں یہ تعلیم دی ہے کہ جب ہم خداوند میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہمارا جو ٹارگٹ ہے زمین کے اوپر وہ یہ ہے کہ مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح سے منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں، تو اس خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے، ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ آمین۔ لہذا یہ ہماری شکلیں یا ہماری مسیح میں جو شکل یا صورت ہے وہ درجہ بدرجہ کیا ہو، وہ بدلتی چلی جائے۔ لہذا یہاں پر ہم نظر آتے چلے جائیں گے کہ ہم جو ہے مسیح کی صورت میں ڈھلتے جا رہے ہیں یا اس کے ہم شکل ہو رہے ہیں، اور آخر کار جب یسوع مسیح ظاہر ہوگا تو کیا ہوں گے؟ ہم اس کی مانند ہوں گے۔ آمین۔ جب خداوند تخت لگائے گا تو وہ کیا دیکھے گا؟ وہ بیٹے کو دیکھے گا اور ہمیں دیکھے گا۔ اگر ہو بہو ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ہو بہو نہیں ہیں تو پھر ہم کو وہ اپنی بادشاہی میں شریک نہیں کرے گا۔ ہماری نجات کی جو کاملیت اس بات کے اوپر ہے کہ ہم بیٹے کی مانند ہوں، اور میں اس کے بارے میں آپ کو سیر حاصل جب وہ کلام سنا چکا ہوں، اور یہ نہیں کہ میں پورے کرائسٹ کو بیان کر سکوں، لیکن یہ ہے کہ جو وہ کرتا تھا، جو اس نے زمین کے پر رہ کر یہ جن باتوں کو ہمارے سامنے رکھا یا ہم نے اس کو غور سے دیکھا ہے، ہم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، اور مشاہدہ یہ کیا جو پہلی دفعہ میں نے آپ کے ساتھ اس کا ذکر کیا، ہمیں بیٹے کی مانند بننا ہے۔ کس میں؟ عبادت جو ہے پبلک ورشپ میں، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ اپنے دستور کے موافق عبادت خانہ میں وہ جاتا تھا۔ پبلک ورشپ کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ یسوع مسیح جو ہے وہ انڈیویجول طور پر جو ہے وہ ورشپ نہیں کرتا تھا۔ میرا مطلب کہنے کا یہ نہیں کہ وہ جو ہے وہ اپنا انڈیویجول طور پر خداوند کے ساتھ جو ہے وہ رفاقت نہیں رکھتا تھا۔ پبلکلی یہ بہت ضروری ہے۔ کئی دفعہ لوگ یہ سوچتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ پبلکلی یا کلیسائی طور پر ورشپ کرنے کی ضرورت نہیں یا عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں گھر بیٹھ کر ہی عبادت کر لیں، لیکن یہ ہرگز نہیں۔ یسوع مسیح بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے دستور کے موافق کیا کرتا تھا؟ عبادت خانہ میں جاتا تھا۔
फिर उसका दस्तूर था, वो दस्तूर के मुआफिक जैतून के पहाड़ पर गया कि क्या करे, वो दुआ करे। वो शाम के वक्त वो दस्तूर था उसका दुआ करने का, लिहाजा उसका दस्तूर था जो है वो इबादत खाने में जाने का, पब्लिक वर्शिप करने का, और फिर उसका दस्तूर था दुआ करने का। और यही इन्हीं बातों को हम अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर इस बात को बयान करेंगे कि हम मसीह की मानद हो रहे हैं। जैसा वो करता है, जैसा वो चलता है, हम उस तरीके के साथ चलेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि हमें मसीह की मानद बनना है, बिकम क्राइस्ट लाइक इन कंपैशन, उसके तरस में उसकी मानद बनना है। जैसा वो तरस वो रखता था, उसी तरस के साथ हम अपनी जिंदगियों के अंदर वो तरस दिखाने वाले हों। फिर बिकम क्राइस्ट लाइक इन फॉरगिवनेस, क्राइस्ट ने क्या किया है, वो माफ़ किया है। उसे ये साफ कह दिया कि जो गुनाह या इब्ने आदम के खिलाफ किया जाएगा वो क्या कर दिया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा। अंदाज़ा ये कीजिए कि उसके अंदर कितना बड़ा दिल है कि वो माफ़ करता है। हम मसीह की मानद बने किस में, माफ़ करने में। फिर मैंने आपको बताया कि बिकम क्राइस्ट लाइक इन सफरिंग, जिसका मसीह ने दुख सहे और उसे ये कहा कि ज़रूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए। जब मसीह दुख उठाता है तो फिर हम किस तौर पर कलीसिया या उसके लोग जो उसको फॉलो करते हैं वो दुखों से घबरा जाए। आमीन। बिकम क्राइस्ट लाइक इन क्या है, लास्ट टाइम मैंने होलीनेस के हवाले से आपके साथ जिक्र किया है। तो मसीह जैसा वो पाक है, लिखा है कि जब वो जाहिर होगा तो हम उसकी मानिंद होंगे और उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो उसे ये उम्मीद रखता है, जो उससे क्या करता है, ये उम्मीद रखता है, वो क्या करता है, वैसा ही अपने आप को पाक करता है जैसा वो पाक है। जो क्राइस्ट के ऊपर ये उम्मीद रखता है कि मैं उसकी मानद बनूंगा या वो जब वो जाहिर होगा तो मैं उसकी मानद हूँगा, तो वो क्या करता है, वो अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो है। आमीन, जैसा वो है। और फिर मैंने आपके साथ ये जिक्र किया, बिकम क्राइस्ट लाइक इन पीस मेकिंग। अभी देखिए कि यीशु मसीह ने क्या किया है, वो सुलह जो था और उसने क्या किया, वो दुश्मनी जो इंसान और खुदा के दरमियान में थी उसने क्या कर दिया है, वो मिटा दी। और वो दीवार जो खुदा और इंसान के दरमियान में थी उसने क्या किया, उसे तोड़ दिया। तुम जो नज़दीक थे, तुम जो दूर थे, उनको क्या कर दिया, अपनी मौत के वसीले से, अपने खून के वसीले से उसने एक कर दिया। उसने हमारी सुलह जो है वो खुदा के साथ करा दी। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा वो हमारी क्या है, वो सुलह है। ही इज आवर पीस, वो हमारा पीस है। और दुनिया के अंदर सबसे बड़ा इश्यू वो क्या है, वो पीस है। इसकी पीस है और पीस आ ही नहीं सकता क्योंकि लोग जिंदगियां वो मसीह की मानद बनने के लिए तैयार नहीं हैं। और जो लोग मसीह की मानद बनने के लिए तैयार हो जाएंगे वो पीस मेकिंग करना शुरू कर देंगे। आमीन, वो सुलह जो होना शुरू हो जाएंगे। अगर घरों में, कौमों में, उम्मतों में, मुल्कों में पीस चाहिए तो क्या करने की ज़रूरत है, मसीह की मानद बनना शुरू करें। और जब मसीह की मानद बनना शुरू करेंगे तो फिर क्या होगा, बोलिए, हम जो है पीस मेकर बनेंगे। हम इत्मीनान और चैन और सुकून, जिससे ये सारी चीज़ें हैं, रिकॉन्सिलिएशन, ये सारी जो है वो पीस के जो वो मतलब बनते हैं। एक करना, एक होना, जो है इत्मीनान, चैन, सुकून, तसल्ली, ये सारे अमन, ये पीस के मतलब है। बिकम क्राइस्ट लाइक इन पीस, बिकम क्राइस्ट लाइक इन सफरिंग, बिकम क्राइस्ट लाइक इन कंपैशन, become Christ like in public worship, become Christ like in prayer, amen, or become Christ like in forgiveness. और आज आपके साथ बात करने जा रहा हूं, become Christ like in making a disciple, शागिर्द बनाने में मसीह की मानद बनना। आमीन। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की इंजील, उसका 4 बाब, उसकी पहली आयत। यूहन्ना की इंजील, उसका 4 बाब, उसकी पहली आयत। फिर जब खुदावंद को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना कि यीशु यूहन्ना से ज़्यादा शागिर्द करता और बपतिस्मा देता है,
आमीन। हमें हर तरह से मसीह की मानद बनना है, हर तरह से मसीह की मानद बनना है, मसीह की सूरत में ढलना है। और हम कैसे सीख सकते हैं? अनाजील से, उन प्रोफेसी से जो उसने की है। ये डिसेप्शन है, मैंने पहले बताया, जो शैतान ने फैलाया हुआ है इंसानों के दरमियान में, कलीसियों के दरमियान में। कोई मसीह की मानद नहीं बन सकता। एक डिसेप्शन था जो उसने अदन में किया कि तुम ये खाओ तो क्या करोगे? खुदा की मानद बन जाओगे। ऐसा ही था ना, ये खा लो तो क्या होगे? खुदा की मानद बन जाओगे। जबकि खुदा ने उनको अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाया था। और आप ये देखिए कि खुदा ने फिर से इंसान को ये मौका दिया है। क्या मौका दिया है? कि जिनको उसने जो है वो पहले से जाना, उनको मुकर्रर भी किया ताकि उसके बेटे के क्या हो सके? हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पेलोठा ठहरे। आमीन। चुनांचे आप ये देखिए कि यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है, लेकिन जब हम उसके हम शक्ल बनते हैं, जब हम उसकी मानद बनते हैं, उसके इमेज के ऊपर जाते हैं, तो क्या होता है? तो हम जो है वो पेलोठा बन जाता है। आमीन। पेलोठे का मतलब जो है वो पहला, और फिर इसके बाद और भी हैं। अगर इकलौता है तो इसका मतलब कोई और नहीं है। ये खुदा का फजल है, ये खुदा की मेहरबानी है, ये खुदा का रहम है इंसानों के ऊपर कि उसने ये फिर से, मैं बार बार इस बात का जिक्र करता, फिर से उसने एक मौका दिया, फिर से एक चांस दिया है। और वो चांस क्या है? कि हम उसके बेटे की मानद बन सकें, हम उसकी मानद बन सकें। आमीन। और बेटे की बाबत क्या लिखा है? वो देखे खुदा की सूरत। आमीन। फिर ये लिखा है वो खुदा के जलाल का परतो और उसकी जात का क्या है? वो नक्श है। आमीन। एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन जो है वो हमें अपना क्राइस्ट के अंदर उसकी नजर आती है। वो इमेज है, उसके जलाल का परताव है। तो गोया आप ये देखिए कि अगर कोई शख्स या कहता है कि मैं मसीह की मानद बनने के लिए तैयार हूं, तो वो जो है उसके जलाल के ऊपर जा रहा है, वो उसकी जात का नक्श के ऊपर जा रहा है, वो अनदेखे खुदा की सूरत इख्तियार करने की तरफ जा रहा है। ये सिलसिला कैसे स्टार्ट होता है? ये बार बार इसका जिक्र कर रहा हूं। जब कोई शख्स जो है नई पैदाइश का तजर्बा करता है, जो कोई शख्स नए सिरे से पैदा होता है, जब कोई शख्स यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का निजात दहिंदा कबूल कर लेता है, ये प्रोसेस उसकी जिंदगी के अंदर स्टार्ट हो जाता है और इसका अंजाम जो है वो मसीह की सूरत में निकलता है। आमीन। चुनांचे अगर कोई शख्स ये कहता है मैं नई पैदाइश का तजर्बा रखता हूं, मैं नए सिरे से पैदा हुआ हूं, मैंने तौबा की, मैंने ईमान लाया, मैंने निजात पाई, मैं बपतिस्मा याफ्ता हूं, तो गोया वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, जब वो कह रहा है कि अब मैं उसकी सूरत में ढल रहा हूं। ये भी कहना आसान है, ये अच्छा है कि मैंने मसीह को कबूल किया, मैंने नए सिरे से पैदा हुआ, नई पैदाइश का तजर्बा हासिल किया, इसलिए कि अब मैं उसकी सूरत में ढलने को जा रहा हूं। आमीन। लिहाजा अगर कोई शख्स इसके अलावा कोई सोचता है तो ये डिसेप्शन हो सकता है, ये धोखा है, ये फरेब है। इसलिए अजीज बहन भाइयों, मैं आपको बार बार इसके बारे में जो है वो उभार रहा हूं। अदन में उसने ये धोखा दिया, ये फरेब दिया कि तुम ये फल खाओ तो क्या होगे? खुदा की मानंद हो जाओगे। अब यह डिसेप्शन फैलाया हुआ है पूरी दुनिया में। कोई शख्स बेटे की मानंद नहीं, कोई शख्स खुदा मसीह की मानंद, हम वो जो है ये तो कुफर है कि हम जो है बेटे की मानंद हो जाएं। ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है कि कोई शख्स जो है वो बेटे की मानंद, हम यीशु की मानंद, ये तो हो ही नहीं सकता। माय डियर, ये डिसेप्शन है कि बाइबल ये कहती है कि उसने पहले से हमें जाना, मुकर्रर किया ताकि हम उसके बेटे के क्या हो सके। बोलिए, क्या बाइबल को हम जुटला सकते हैं? इसलिए ये हम इब्लीस की बातों को तो जुटलाएं, लेकिन कलाम को अपने सामने रखें। आमीन। जब हम मसीह के साथ चलने का तजर्बा रखते हैं, इसमें हम स्पिरिट के अंदर मूव करें, स्पिरिट के अंदर चलें। जो रूह की हिदायत से चलते हैं वो खुदा के बेटे कहलाते हैं।
آمین. یہ درجہ بدرجہ بدلنے کا نام ہے. جب عقل نہیں ہوگی تو ہم اس میں نئی صورت میں بدلتے چلے جائیں, بڑھتے چلے جائیں. یہ جو ہمیں نیا مخلوق ہے وہ اس کی جو نیچر وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آسمانی باپ کی معرفت میں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. وہ روز بروز علم نالج کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہیں. آمین. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ بولیے, کہیے آمین. آمین. پھر خداوند کو معلوم ہوا کہ فریسیوں نے سنا ہے کہ یسوع یوحنا سے زیادہ وہ شاگرد کرتا اور بپتسمہ دیتا ہے. آمین. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یسوع مسیح ڈسائپل جو ہے وہ بناتا تھا. ٹھیک ہے, تو کرائسٹ جو ہے وہ ڈسائپلنگ کرتا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ فریسی بھی وہ تری اور خشکی کا وہ دورہ کرتے تھے اور وہ کیا کرتے تھے, شاگرد وہ بناتے تھے. اور وہ حیران تھے کہ فریسیوں نے یہ کہا کہ یہ تو ہم سے بھی زیادہ کیا کرتا ہے کہ شاگرد کرتا ہے. یوحنا سے بھی یہ اس سے زیادہ وہ شاگرد کیے ہیں اور وہ بپتسمہ وہ دیتا ہے. اور شاگرد کے لیے جو ڈسائپل ہے, اس کا جو روٹ معنی ہے وہ ڈسپلن کے ساتھ نکلا ہے کہ ڈسپلن جو ہے تربیت کے اندر نکلا ہے. اور ڈسپلن کو جو ہے مینٹل یا ٹریننگ جو ہمیں نظر آتی ہے, یہ اس سے یہ مراد ہے کہ جس کی جو ذہنی طور پر جو ٹرینڈ کیا جائے وہ ڈسائپل ہے. ڈسپلن جو ڈسپلن کے اندر وہ رہتا ہے. تو کرائسٹ نے جو ہے وہ اپنے جو شاگرد بنائے ہیں وہ ایسے شاگرد جو ذہنی طور پر جو مضبوط ہوں, جو ذہنی طور پر جو ہے وہ اس کے لیے کام کرنے والے ہو سکے. آمین. لیکن اس سے پہلے کہ یسوع مسیح شاگرد بناتا, ہمیں یہ کرائسٹ کے حوالے سے یہ ایک بات جو ونڈرفل بات وہ سامنے ہمیں آتی ہے, یا بائبل اس کے بارے میں ہمیں وہ بیان کرتی ہے, وہ یہ ہے کہ شاگرد کون بناتا ہے, یا شاگرد کیا کس طرح سے کوئی شخص وہ بنا سکتا ہے, یا کرائسٹ نے یہ شاگرد کیوں بنائے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے. جب آپ یسایہ 50واں باب اس کی 4 آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے, خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلے سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں. آمین. اس سے پہلے کہ کرائسٹ شاگرد بنائے, وہ خود کیا تھا, ایک زبردست شاگرد تھا. آمین. یہ کرائسٹ کے حوالے سے یہ پروفیسی ہے, یہ نبوت ہے. نبوت کیا ہے کہ یسوع مسیح کیا ہے, خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلے سے کس طرح تھکے ماندے کی کیا کرنا ہے, بولیے, مدد کر دی ہے. وہ مجھے صبح سویرے جو ہے وہ جگاتا ہے تاکہ میں کیا کروں, کان لگاؤں. ٹھیک ہے, اسے شاگرد کے سے کان وہ کرائسٹ کے بخشے. اور وہ خود جو ہے وہ کیا تھا, ایک زبردست شاگرد تھا. اور شاگرد کیا ہے, جو سنتا ہے. شاگرد کیا ہے, جو ہے وہ اپنا جو کہا جاتا ہے وہ بولتا ہے. آمین. جس کو کہا جائے کچھ, وہ اسی کو جب وہ بیان وہ کرتا ہے. یسوع مسیح کس کا شاگرد ہے؟ حیران کن بات ہے اور یہ زبردست بات ہے, وہ اپنے باپ کا شاگرد تھا. آمین. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو کچھ میرا باپ مجھ سے کہتا ہے میں وہی کہتا ہوں, اور میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کہتا, بلکہ جو باپ مجھے جو ہے وہ میرے منہ میں ڈالتا ہے, جب مجھے کہتا ہے میں جو ہے وہ کیا کرتا ہوں, اس کی جو ہے وہ بیان کرتا ہوں. تو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ کرائسٹ اگر کیا کہا جاتا ہے کہ وہ فریسیوں سے زیادہ شاگرد وہ بناتا ہے, شاگرد کرتا ہے, تو اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن, یہ سب سے بڑی ریزن تو یہ ہے کہ وہ خود وہ کیا کرتا ہے, شاگرد جو ہے وہ خود شاگرد ہے. وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں. آمین. تاکہ شاگردوں کی طرح کیا کروں, بولیے, سنوں. وہ مجھے کیا کرتا ہے, صبح سویرے جگاتا ہے. وہ صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے کہ سن, تو شاگرد ہے, تو سن, تو لرنر ہے. اور یہ اچھا ہے کہ یہ ورڈ جو ہے لرنر کے لیے, لرنر کرائسٹ یا لرنر تھا,
اور وہ سنتا تھا، وہ اپنے باپ کی بات کو سنتا تھا، وہ صبح سویرے نکل جاتا تھا، وہ شام کو نکل جاتا تھا، وہ کیا کرنے کے لیے؟ شاگرد، کیونکہ وہ شاگرد تھا۔ وہ کیوں باپ کی سنتا ہے؟ وہ باپ کی ہی بات کو کیوں دہراتا ہے؟ کیونکہ وہ جو ہے وہ اس کے پاس شاگرد کی سی زبان تھی، اس کے کان کیسے تھے؟ شاگرد کیسے وہ کان تھے؟ لکھا ہے کہ وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں۔ آمین۔ اب ایک اور بات جو آپ کے درمیان میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ اب جو ہے یہ تھوڑی سی کیٹاگرائز کرا دیا گیا ہے شاگرد، جو ہے کلیسیا کے اندر شاگرد کون ہیں، شاگرد کون ہیں اور کلیسیا کون ہیں۔ اگر آپ اعمال کی کتاب میں پڑھیں تو بائبل مقدمہ کے شاگردوں کی جماعت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور جو ہمیں تعلیم جو دی گئی ہے کہ خلقت میں جا کر انجیل کی منادی کرو اور ان کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے کیا کرو؟ بپتسمہ دو۔ اب جو ہے بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ سب سے پہلے شاگرد بنتا ہے، اور شاگرد کو کیا کیا جاتا ہے؟ پانی کا بپتسمہ دیا جاتا ہے، اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اب بات یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے اور جو یسوع مسیح کی انجیل کو اپنی زندگی کے اندر لیتا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ شاگرد کہلاتا ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ شاگرد ہیں تو جو ہے کئی دفعہ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، میں شاگرد تو نہیں ہوں، میں شاگرد نہیں ہوں۔ میں شاگرد اس لیے نہیں ہوں کیونکہ میں تو کوئی اسپیشل جو ہے وہ کلاسز تو نہیں لیتا۔ جو اسپیشل کلاسز لیتے ہیں آج کل ان کے اسٹوڈنٹس استعمال ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا استعمال ہو رہے ہیں؟ اسٹوڈنٹ، شاگرد نہیں۔ کاش شاگرد یہ لفظ استعمال کیا جائے۔ آمین۔ کیا کیا جائے؟ شاگرد، ڈسائپل۔ بے شک اس کے سارے معنی ادھر اسٹوڈنٹ کی طرف ہی جائے گی جو سیکھنے والا ہے، ٹھیک ہے، لیکن شاگرد کے لیے جو ہے وہ ڈسپلن کے اندر شخص آتا ہے۔ کرائسٹ نے ان کو ڈسپلن کے اندر رکھا ہے، ٹھیک ہے، ان کے ذہن کو جو ہے، ان کے دماغوں کو، ان کی اسپرٹ، روح بدن جان کو کنٹرول جو ہے ایسی تعلیم دی ہے جس کے ذریعے سے وہ جو ہے شاگرد بنے ہیں۔ آمین۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ کلیسیا کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ جو ہے ہم کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں، شاگرد نہیں۔ اب سوال یہ ہے ہم میں سے کتنے ہیں جو ایماندار ہیں اور کتنے ہیں جو شاگرد ہیں؟ جو ایماندار ہے وہ اپنے ہاتھ کھڑا کرے۔ میں کہوں گا ہم سب ہیں ایماندار۔ کتنے ایماندار بیٹھے ہیں ادھر؟ سارے ایماندار ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کئیوں کو شک تو نہیں ہے کہ نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا۔ کتنے ایماندار ہے؟ ایماندار ہے۔ اور کتنے شاگرد ہیں؟ حیران کن بات یہ ہے کہ ہم جو ہے تعلیم کو کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ اس طرح سے کر دیا گیا ہے، کیٹیگرائز کر دیا ہے کہ شاگرد علیحدہ ہیں، ایماندار علیحدہ ہیں۔ خلقت میں جا کر انجیل کی منادی کرو اور ان کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹی اور روح القدس کے نام سے کیا کرو؟ بپتسمہ دو۔ جو ہے آپ اعمال کی کتاب میں شاگرد بنے جاتے تھے، شاگرد بنائے جاتے تھے۔ آمین۔ ہمیں یہ ساری بائبل مقدس میں یہ تعلیم ملتی ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں کہ وہ شاگرد بنتے تھے، وہ ایمانداروں کی جماعت شاگردوں کی جماعت تھی۔ شاگرد جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ کلیسیا کمزور ہے، وہ تعلیم کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں کرتے۔ میں چونکہ یہ شاگرد نہیں ہوں، میں عام سا ایماندار ہوں۔ شاگرد تو جو ہے یسوع مسیح کے ہوتے ہیں، شاگرد تو کیا ہوتے ہیں؟ یسوع مسیح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کی جگہ نہیں لے سکتے ہیں۔ عزیز بہن بھائیو، ہمیں مسیح کی مانند بننا ہے۔ پہلے تو آپ اس طرف آ جائیں کہ ہم شاگردوں کی سے کیا کریں؟ شاگرد کی سی زبان رکھیں، ہم جو شاگرد کے سے کان رکھیں۔ سیکھنے اور بولنے کا ہمیں جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ
वल आना चाहिए, जिसे कहते हैं तरीका, मेथड आना चाहिए। बोलने का हमें और समझने का जो है वो तरीका वो आना चाहिए। क्राइस्ट के हवाले से क्या, वो फरीसी ने सुना कि यीशु यूहन्ना से ज्यादा शागिर्द करता और बपतिस्मा वो देता है, लेकिन इससे पहले कि वो शागिर्द बनाता, वो खुद शागिर्द की सी जबान रखता था, वो शागिर्द के से कान वो रखता था। उसके शागिर्द बनने का मकसद ये था कि वो थके मांदे को क्या कर सके, उनकी मदद कर सके। यही लिखा है कि ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीले से किस तरह थके मांदे की क्या करनी है, मदद करनी है। और फिर क्या कहता है, ताकि मेरा कान मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। खुदा ने मेरे कान खोल दिए और मैं बागी और बरगश्ता ना हुआ। और ये देखिए कि कई ऐसे शागिर्द हैं जो बागी और बरगश्ता है और उनके कान बंद हैं, उनकी जुबान बंद है, वो ना बोल सकते हैं ना वो सुन सकते हैं। ये गूंगे शागिर्द कहां से आ गए? कलीसिया में गूंगे शागिर्द हैं, लेकिन आप बाइबल मुकद्दस में क्राइस्ट को देखिए, जो बोलने वाला शागिर्द है और जो सुनने वाला शागिर्द है और जो सुबह भी बैठता है, जो शाम में भी बैठता है, क्या करने के लिए? कान खोलता है। उसका बाप उसको क्या करता है? उसके कान खोलता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। उसने अपने शागिर्दों के भी कान खोले। लिखा है, जब आप लूका 24वें बाब में पढ़े तो उसने क्या किया है? उनके जहन को खोला। आमीन, उनके जहन को क्या खोला, ताकि वो किताब मुकद्दस को वो समझे। ये है खोलना। क्राइस्ट को भी खुदा ने, बाप ने क्या किया है? उसके सामने पूरा प्लान रख दिया, शागिर्द वाला प्लान रख दिया। और इसलिए आप उसके अंदर आजिज़ी और इनकसारी को देखते हैं। और आप ये देखिए कि किस तरीके के साथ जो है वो कान लगाता है। आप देखेंगे कि क्राइस्ट वो सुबह भी जाता, शाम को भी जाता, सुबह भी जाता, शाम भी जाता, सुबह शाम। ये क्या चक्कर है? ये चक्कर जो है शागिर्द का चक्कर है। आमीन। कौन सा चक्कर है? बोलिए। शागिर्द वाला चक्कर है। जो सुबह का चक्कर, शाम का चक्कर, वो शागिर्द कैसे कान रखता है, वो शागिर्द किसी जबान रखता है। इसलिए जो है वो सुबह और शाम जो है वो अपने बाप के पास जाता। उसको क्या जरूरत है बाप के पास जाने के लिए? क्योंकि उसका बाप जो है उसे सिखाता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद जो है, आप इंसान की किताब में पढ़े, जो है सुलेमान कहता है, मैं अपनी माँ का अकेलौता और लाडला था। आमीन। और फिर दाऊद ने उसको सिखाया, दाऊद ने सिखाया, मेरे बाप ने मुझे सिखाया, मैंने अपनी माँ की तरबियत को जो है वो रद्द वो नहीं की। और सुलेमान के अंदर भी ये स्पिरिट थी, शागिर्द वाली स्पिरिट थी। वो अपने बाप की बात को सुनता था, वो अपनी माँ की तरबियत को, माँ बाप की तालीम को उसे रद्द नहीं किया है। इसलिए आप उसको एक जो है बड़े मर्तबे और एक बड़े जो है वो ओहदे की ऊपर सरफराज आप देखते हैं। आमीन। क्राइस्ट अपने बाप की सुनता है। अगर वो डिसाइपलर है तो वो डिसाइपल भी है। आमीन। इसलिए अजीज बहनों भाइयों, अगर हमने मसीह की मानद बनना है, हम में से हर एक ने या क्या करना है? वो क्या करनी है? खलकत में जाकर क्या करनी है? बोलिए। अंजील की मनादी करनी है और उनको क्या करना है? शागिर्द बनाना है। और फिर उनको क्या करना है? ये मेरा काम तो नहीं है, ठीक है? ये क्या है? कहते हैं ये तो हम कौन से शागिर्द हैं, ठीक है? ये शागिर्दों का काम है। अब मैं फिर से सवाल पूछता हूं, आप एक दूसरे को कहिए, मैं शागिर्द हूं कि नहीं हूं? एक दूसरे को क्या कहिए जरा, हाँ कहिए जरा, मैं शागिर्द हूं या नहीं हूं? ठीक है? जो सोए हैं उनको जगा कर कहिए, मैं शागिर्द हूं या नहीं हूं? हैं? यस, यस। अगर आप शागिर्द हैं तो क्या करेंगे? मैं शागिर्द हूं, कहिए आप। आमीन। मैं शागिर्द हूं। अगर मैं शागिर्द हूं तो फिर क्या करूंगा? मेरे पास शागिर्द की जुबान होगी, मेरे पास शागिर्द के से क्या होंगे? कान होंगे। मैं बाप की बात को सुनूंगा, मैं सुबह शाम उसकी आवाज के ऊपर कान धरूंगा और फिर क्या करूंगा? मैं शागिर्द बनाऊंगा भी। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। मैं खलकत में जाकर क्या करूंगा? अंजील की मुनादी करूंगा। लेकिन मैं खलकत में तो नहीं आपको भेजता, बल्कि आप अपने घर ही के अंदर जो है, अपनी खलकत के अंदर जो आपकी खलकत है उसको शागिर्द बनाएं। आमीन। अपनी खलकत को क्या करें? शागिर्द बनाएं, ताकि क्या हो सके, वो जो है वो मसीह को जान सके, वो मसीह को पहचान सके। आमीन। क्योंकि वो शागिर्द है, क्राइस्ट जो है वो शागिर्द की कैसे जुबान रखता है, उसके कान रखता है। और आप ये देखिए कि किस तरीके के साथ उसको सुनने के लिए लोग जमा है। लूका की इंजील उसका 21वां बाब उसकी 38 वर्स पढ़िए। लूका 21वां बाब उसकी 38 आयत। आमीन। कितने बजे आते थे उसके पास? सुबह सवेरे, अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या करते थे? अर्ली इन द मॉर्निंग क्या करते थे? यीशु मसीह को सुनने के लिए आते थे। प्रेज द लॉर्ड। आप ये देखिए कि किस तरीके के साथ वो अपनी जो है वो कम्युनिकेशन को रखता है। मैंने इस कम्युनिकेशन के ऊपर भी, कलाम करने के ऊपर भी आपको जो है ये बताया है कि उसकी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग थी। वो इस तरीके के साथ अपने बाप और अपने जो है खुदावन के हुजूर में झुकता था कि वो अपने अंदर शागिर्द की सी जो है वो जबान रखता था। और उसकी मिठास ऐसी थी, उसके कलाम करने की ऐसी कुव्वत थी कि लोग उसको सुनने के लिए अर्ली इन द मॉर्निंग वो आ जाते थे। वो सारा दिन उसको सुनने के लिए वो तैयार थे। हम कैसे शागिर्द हैं जो हमें सुनने के लिए लोग तैयार नहीं हैं? हम कैसे शागिर्द हैं कि जब हम जो है किसी से बातचीत करते हैं, कलाम की बातचीत करते हैं, तो वो सुनने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। लिहाजा चूंकि हमें मसीह की मानद बनना है, मसीह की सूरत में हमें ढलना है, तो हमें जो है ये इरादा बांधना होगा कि मैंने क्राइस्ट की तरह अपनी जुबान, शागिर्द की सी जुबान रखनी है। मैंने उसकी तरह के कान रखने हैं ताकि बाप क्या कर सके, मुझे सिखा सके। होली स्पिरिट हर वक्त, हर लम्हा हमें सिखाने के लिए और हमें तालीम देने के लिए वो तैयार रहता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए तो बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, बल्कि क्या करूंगा? दूसरा मददगार क्या करूंगा? वो भेजूंगा। वो क्या करेगा? मेरी बाबत तुम्हें क्या करेगा? वो तालीम देगा। वो मेरी बातें तुम्हें क्या करेगा? वो सिखाएगा। आमीन। तो होली स्पिरिट हमें दिया गया है। लिहाजा हर एक शागिर्द के पास, कलीसिया के अंदर हर एक शख्स जो है वो होली स्पिरिट के ताबे हो। जो शागिर्द है वो होली स्पिरिट के वो ताबे होगा। वो होली स्पिरिट की बात को वो क्या करेगा? वो सुनेगा। आमीन। क्योंकि वो यीशु मसीह की बातों को वो क्या करता है? वो सिखाता है। वो यीशु मसीह की बातों को क्या करता है? वो हमें जो है वो याद वो दिलाता है। अगर कोई शख्स जो है वो भूलता है, अगर कोई शख्स जो है वो याद नहीं रखता है, तो वो होली स्पिरिट के ताबे रहे। अगर बहुत सारे शागिर्द जो है वो बातों को भूल जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो ठीक तरीके के साथ क्या है? वो बोलिए शागिर्द नहीं है। हमें किसकी मानद बनना है? बोलिए मसीह की मानद। ठीक है। इन डिसाइपलशिप में, शागिर्दियत में यीशु मसीह की मानद बनना है, क्योंकि वो खुद वो ऐसा करता था। वो खुद जो है वो डिसाइपल था। लिहाजा जिस तरह यीशु मसीह शागिर्द है, हम उसी तरीके के साथ वो क्या करने वाले? शागिर्द बनने वाले हों। आमीन। इसलिए जो है, क्योंकि जो कलीसिया में कमजोरी इसलिए है क्योंकि मैंने पहले बताया कि हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। हम कहते हैं कि हम जो है वो ईमानदार हैं, हम शागिर्द नहीं हैं। एक ही बात है मेरे भाइयों बहनों। आमीन। आप ईमानदार शागिर्द कह लीजिए। कौन से शागिर्द है? ईमानदार शागिर्द। ठीक है। लेकिन अगर आप शागिर्द की जो है वो स्पिरिट को जो है अपने अंदर से निकाल दें,
निकाल देंगे, तो फिर जो है आप कभी भी जो है वो बहुतों को खुदावन के करीब लेकर नहीं आने पाएंगे। इसलिए आप ये देखिए कि चूंकि सारा का बोझ सारा बोझ जो है वो पूरी जो है वो खादमों के ऊपर कर, ये अपॉइंटेड किए गए हैं, इनका काम है, ये हमारा काम नहीं है। कलीसिया, आप शागिर्दों की जमात हैं, आप ईमानदारों की जमात हैं। आमीन। जो है वो अर्ली चर्च के अंदर शागिर्द बनाए जाते थे, अर्ली चर्च के अंदर शागिर्दों की जमात थे। ये मैन, अब बहनें शागिर्द हो सकती हैं? हाँ, है? बाइबल मुकद्दस लिखा है कि पतरस ने किसको जिंदा किया था? शागिर्दा को, जो शागिर्द थी, वो किसको जिंदा किया उसने? शागिर्द को। एक शागिर्द को क्या किया? ये पतरस ने जिंदा किया। आपको ईमान की किताब में मिलेगा। वो कौन थी? तबीता। ठीक है, वो क्या कहलाती थी? वो शागिर्द वो कहलाती थी। इसलिए कई दफा हम ये कहें कि चूंकि ये सिर्फ और सिर्फ काम जो है वो मेल जो है वो डिसाइपल्स क्या है, वो फीमेल डिसाइपल्स नहीं हो सकती है, तो ये जो है ये बेवकूफ़ी हो सकती है, ये नादानी हो सकती है। क्योंकि जो है हम जो ईमान की किताब के अंदर मिलता है कि शागिर्द जो है वो तबीता शागिर्द थी, जिसको जो है पतरस ने वो जिंदा किया है, जो है वो फलाई काम करती थी, और फलाई काम के साथ साथ वो खुदावन की तालीम को भी वो क्या करती थी? वो फैलाती थी। इसलिए हम में से हर एक शख्स जो है उसकी ये ड्यूटी है, उसका ये काम है कि वो यीशु मसीह की मानद जो है वो डिसाइपल बने, वो यीशु मसीह की मानद डिसाइपलर बने। आमीन। दो बातें हैं, यीशु मसीह की मानद डिसाइपल बने और यीशु मसीह की मानद डिसाइपलर बने। जो शागिर्द नहीं, वो शागिर्द बना भी नहीं सकता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। लूका की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 25वीं 26वीं 27वीं आयत पढ़िए। लूका की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 25वीं आयत से 27वीं आयत। कोई बहनों भाइयों में से जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे तो उसने फिर कर उनसे कहा, हाँ जी आगे। जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे तो उसने फिर कर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। आमीन। यीशु मसीह अपने बाप की बात को मानता था। हम किसकी बात को माने? क्राइस्ट की बात को, होली स्पिरिट की बात को। और वो कहता है कि अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों, किन किन को? अपने बाप, माँ, बीवी, बच्चों, भाइयों और बहनों, बल्कि अपनी जान से भी क्या करे? दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि शागिर्द की तो कीमत बहुत बड़ी है। हम अपने बाप, अपनी माँ, अपनी बहनें, अपनी बीवी, अपने बच्चे और अपनी जान को बहुत अजीज रखते हैं। और इसलिए कलीसिया इसलिए कमजोर है क्योंकि हम अपनी फिक्र करते हैं और हम जो है अपनी सलीब उठाना नहीं चाहते, और इसलिए जो है एक कह लीजिए कि बड़े ही या फॉर्मल टाइप के क्रिश्चियंस बने हुए हैं। हमें फिर से ये टर्म को जो है कलीसियों के अंदर राइज करने की जरूरत है कि कलीसिया ये शागिर्दों की जमात है।
आमीन। ये शागिर्दों की जो है वो शागिर्दों का जो है ये एक क्लास है, आमीन, जहां पर तालीम दी जाती है, जहां पर सीखना और सिखाने का अमल वो होता है। चर्च सीखने और सिखाने का जो है वो जगह है जहां पर क्राइस्ट की तालीम दी जाती है, और यहां पर जो सीखने वाले हैं वो डिसाइपल ही कहलाएंगे। आमीन। इसलिए कलीसियाओं के अंदर जो है ये चीजों को लाना होगा। देन जो है कलाम के अंदर, अंडरस्टैंडिंग के अंदर जो है ईमानदार मजबूत होंगे। हमारे बच्चे, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग वो क्यों कलाम के अंदर बाइबल की बातों में वो मजबूत इसलिए नहीं है क्योंकि वो डिसाइपल नहीं है, इसलिए कि वो शागिर्द नहीं हैं। वो ये कहते हैं हाँ मैं कलीसिया का रुकन हूं, बल्कि आप ये कह लीजिए कि मैं उस कलीसिया में शागिर्द हूं। आमीन। मैं मसीह का शागिर्द हूं। कभी आपने कहा कि आप कौन हैं? मैं मसीह का शागिर्द हूं। लेकिन यहां पर भी जो है ये कैटेगराइज कर दिया गया है। अभी मैं एक आयत आपको देता हूं जिससे आप जरा वो समझ पाएंगे कि अब ये देखिए कि जो है खादमीन के दरमियान में भी लीडरशिप के अंदर कहा कि शागिर्द बनाए जाएंगे। उनके अंदर भी जो है अजीब सा चुनाव कर दिया गया है। एक आयत पढ़िए जिसमें आपको मिलेगा कि किस तरीके के साथ लूका की इंजील 6 बाब उसकी 12वीं आयत पढ़िए, आपको वहां पर जो है थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा। और इन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। और जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर क्या किया? उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको रसूल का लक़ब दिया। आमीन। ये देखिए क्राइस्ट ने शागिर्द बनाए हैं, क्राइस्ट ने शागिर्द जैक किए हैं। वो 12 थे, 70 थे, मोर देन थे, ठीक है, 70 हमें नजर आते हैं और बहुत सारे थे। और उन शागिर्दों में से उसने 12 चुने हैं। आमीन। जिनको उसने जो है रसूल का लक़ब दिया है, जिसको हम कहते हैं मैसेंजर या भेजे हुए वो कहते हैं। आमीन। इसका मतलब ये है कि जो है जब मिनिस्ट्रीज के अंदर जो है वो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है, रसूल, नबी, उस्ताद, चरवाहे, मुबश्शिर, ये 5 तरह की खिदमत है जिसमें से इन शागिर्दों में से चुने गए हैं। आमीन। आपको समझ आ रही है? थोड़ी सी गौर से सुनिए ताकि हम इस बात को समझे कि हमें जो है थोड़ा सा ज़हन को जरा वसी करने की वो जरूरत है। यीशु मसीह ने शागिर्दों में से जो 12 को चुना है, उसे शागिर्द ही बनाए हैं। और जो है माँ की किताब में शागिर्द ही की जमातें हैं, और उनमें से जो है उन शागिर्दों में से जो है उन बात डीकन्स लिए हैं, बात जो है वो उन्होंने कलीसिया के इंतजाम के लिए जो है वो लोगों का चुनाव किया है। अदरवाइज हर एक जो है वो शागिर्द है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसे मैं आपको उभारना चाहता हूं, आपको इसके बारे में जो है खड़ा करना चाहता हूं कि हम पहले मसीह की मानद बने जिसको शागिर्द की जुबान दी गई है, जिसको शागिर्द के से काम दिए गए हैं, जो सुबह और शाम जो है वो सुनने के लिए तैयार रहता है और सारा दिन जो है वो आप इस जुबान से जो वो सीखता है, जो सुनता है, वो क्या करता है, वो जो डिलीवर वो करता है और वो इंजील की मुनादी करता है। इसलिए जो है सारा चर्च वो कौन है? वो डिसाइपल है। और वो क्या करे? वो तालीम देना शुरू करे, वो इंजील की मुनादी करना शुरू करे, वो लोगों को मसीह के पास लाना शुरू करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये और फिर उन्हीं में से जो है आगे जो है वो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री जो है वो चर्च के अंदर जो है वो रखी जाती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम इसकी तरफ तवज्जो करें। ये जो हम जो है ऐसी जिंदगी बसर कर रहे हैं, इसे तरह करना पड़ेगा। जो शागिर्द है, आप गौर से सुनिए, उसका माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे, अपनी जान जो है इन सब को क्या करना होगा? तरह करना पड़ेगा, तो वो चर्च का एक खास हिस्सा बन सकेंगे। आप सोच सकते हैं हम तो अपनी मर्जी से जो है वो चर्च में आते हैं,
ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کلام پڑھتے ہیں، اپنی مرضی سے جو ہے کسی کو مسیح کی بات بتاتے ہیں، جو ہے کہ کوئی شخص مر رہا ہے مرتا دے، ہم کبھی نہیں کہیں گے یار جو ہے اس کو مسیح کی بابت سکھائے، مسیح کی بابت بتائیں۔ کیا ہم شاگرد نہیں ہیں؟ کیا ہمیں شاگرد کی سی زبان نہیں بخشی گئی؟ کیا ہمارے پاس شاگرد کے کان نہیں ہیں؟ کیا ہم شاگرد کہلانا نہیں چاہتے ہیں؟ اگر شاگرد نہیں کہلانا چاہتے تو غور سے سنیے، ہم مسیح کی مانند نہیں بن سکتے۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، آسمان کے اوپر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا جب عدالت کرے گا تو کیا ہوگا؟ وہ آگے بتائیے بائبل، جب آسمان پر جب خدا بیٹھے گا تو کس کو دیکھے گا؟ وہ دو لوگوں کو دیکھے گا۔ کون کون سے دو لوگ ہیں؟ وہ بیٹے کو دیکھے گا، پھر وہ مجھے دیکھے گا۔ میرے بیٹے کا اگر میں ہم شکل نظر نہ آیا، اگر بیٹے کی ہو بہو میری شکل صورت نظر نہ آئی، اس کے قد کاٹ اس کے مطابق نظر نہ آیا، تو وہ کیا کہے گا؟ آؤٹ۔ اگر جو ہے بیٹے کی ایمانت میں نظر آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا بادشاہی میں شریک ہو۔ بیٹے کی ایمانت ڈسائپل شپ کے اندر، جیسا کرائسٹ ڈسائپل شپ کے اندر جو ہے وہ آیا ہے، اسی طریقے کے ساتھ ہم میں سے ہر ایک کو جو ہے ڈسائپل شپ کے اندر آنا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم جو ہے بادشاہی سے محروم ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک حصہ ہے ڈسائپل شپ کے اندر ہونے کا، کیونکہ وہ ڈسائپل تھا اور ڈسائپلر تھا۔ ڈسائپلر بنا، اس نے کہا اے ربی، نیکودیمس نے کیا کہا؟ کہتا ہے اے ربی ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے۔ آمین۔ اور یسوع مسیح نے خود شاگردوں کو کہا تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ آمین۔ اس لیے کیونکہ وہ ڈسائپل تھا، وہ شاگرد وہ تھا، ہمیں مسیح کی مانند شاگرد بننا ہے۔ ہمیں مسیح کی مانند ڈسائپلر شاگرد بنانے والا بننا ہے، تاکہ جب آسمان کی بادشاہی میں جائیں تو ہم اس کی مانند نظر آئیں۔ آمین۔ اور شاگرد کی قیمت کیا ہے؟ بولیے۔ اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ اندازہ یہ کیجئے، ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم اپنی جان سے دشمنی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم اپنی جان کو عزیز رکھتے ہیں۔ جو اپنی جان کو جو ہے وہ بچائے گا، بائبل مقدس میں یسوع نے کیا کہا؟ وہ اپنی جان کو اس کا نقصان اٹھائے گا، جو بچائے گا وہ کھوئے گا۔ اور جو مسیح کے لیے جو اس کے پاس آیا ہے، کون اس کے پاس آیا ہے؟ اگر کوئی میرے پاس آئے، کون آئے؟ میں اگر آیا ہوں اور اپنے باپ اور ماں اور بھائی بیوی اور بچوں اور بھائیوں بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہیں تو ہم کلیسیا کا حصہ ہیں، اگر ہیں تو ہم نے یہ کہہ دیا، ہم یہ تیار ہو گئے، ہم ریڈی ہو گئے ہیں کہ ہم مسیح کی مانند بنیں گے۔ آمین۔ پریز دا لارڈ۔ مجھے کس کی مانند بننا ہے؟ بولیے۔ جس کو اس نے پہلے سے جانا، ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا تاکہ وہ بیٹے کے ہم شکل ہو، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں کیا ہو؟ پلوٹا ٹھہرے۔ چنانچہ پلوٹا بننے کے لیے، کرائسٹ کو پلوٹا ٹھہرانے کے لیے ہمارے پاس یہ پریویلیج ہے، یہ ہمیں یہ شرف دیا گیا ہے کہ وہ پلوٹا بن سکتا ہے۔ کس طرح سے؟ اگر ہم اس کی مانند بنیں۔ کس میں؟ ڈسائپل شپ میں اس کی مانند بنے۔ آمین۔ آگے کو کوئی یہ نہ کہے کہ میں شاگرد نہیں ہوں، آگے کو یہ کوئی نہ کہے کہ میں شاگرد کے سے کام نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی یسوع مسیح کے پاس آیا ہے تو پھر اسے ان باتوں کو جو ہے وہ فالو کرنا ہوگا۔ اگر وہ ایسا نہیں کر پایا تو وہ جو ہے آسمان کی بادشاہی میں اسے بہت مشکل پیش آئے گی۔ اس بڑی مشکل سے بچنے کے لیے ضرور ہے کہ ہم مسیح کی مانند بنیں۔ آمین۔ آپ نے سروں کو جھکائیں اور دعا کر رہے ہیں۔